Pledge. I, Kamaljit, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. So, today we will start uses of common metal. The important non-metals that find use in our day-to-day life are oxygen, carbon, coal, graphite, diamond, charcoal, etc. जो हमारी रेगुलर डे टू डे लाइफ में जो नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल एक्सेट्रा. सम ऑफ द नॉन मेटल एंड देयर यूजेस आर डिस्कस्ड बिलो. सो फर्स्ट कार्बन. कार्बन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है. ये मेनली कोल, ग्रेफाइट, चारकोल एंड डायमंड में ऑकर होता है. कोल इज मोस्टली यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज और होम में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं कोल को. अर्लियर कोल वॉज यूज टू रन ट्रेन्स को रन करने के लिए भी अर्ली डेज में इसको यूज़ किया जाता था. इवन मैनी ट्रेन स्टिल रन ऑन कोल. कुछ ऐसी ट्रेन्स अभी भी हैं जो कोल के साथ रन होती है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकली सेक्टर्स एज अ सोर्स ऑफ सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड केमिकल्स. ग्रेफाइट, ये भी क्या है? कार्बन का फॉर्म है. एक सॉफ्ट स्लिपरी एंड क्रिस्टलाइन ब्लैक लस्ट्रियस सब्सटेंस है. इट इज सोपी एंड टर्न्स ब्लैक. ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स के लिए एज ए लुब्रिकेंट. एक ऑयली सब्सटेंस इसको यूज़ किया जाता है. पेंसिल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल फॉर मेकिंग क्रूसिबल फॉर कीपिंग molten metal to control the speed of nuclear reaction etc. So this all are the uses of graphite. Third one is charcoal. Charcoal is used in water filter to remove impurities. Charcoal water filters में use होता है impurities remove करने के लिए. It is used as a decolorized agent in sugar industries. Sugar industry में decolorizing agent की use होता है. It is also used as a fuel and in manufacture of gunpowder. Fourth form is diamond. It is also a form of carbon. Diamond is one of the crystalline form of carbon. It is the hardest natural occurring substance known as so far. Diamond का एक crystalline form है कार्बन का. ये naturally occur में होता है. ये hard होता है, बहुत ज़्यादा hard in nature होता है. इसको ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है, कटिंग ग्लास के लिए यूज़ होता है, ग्राइंडिंग हार्ड सब्सटेंस एंड इन ड्रिलिंग हैंड. Iodine. Iodine is a dark grey crystalline solid with a glittering metallic cluster. It is insoluble in water but soluble in alcohol and potassium iodide solution. It is uses are. Iodine के एक dark grey crystalline solid है. ये क्या होता है? वाटर में insoluble है, वाटर में soluble नहीं है, बट अल्कोहल एंड पोटेशियम आयोडाइड में ये soluble है. यूजेस क्या है? इन फोटोग्राफिक फिल्म इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होते हैं. इट इज यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी टू लैटिट्यूड सॉल्ट. एक्चुअली आयोडीन डिफिशियंसी कॉजेज गोइटर ए डिजीज इन ह्यूमन बॉडी. ये क्या होता है? सॉल्ट में भी यूज होता है आयोडीन, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन डिफिशियंसी हो जाएगी तो गोइटर डिजीज हो जाएगी ह्यूमन बॉडी में. It is used to make tincture of iodex and iodex which are used as a disinfectant and antiseptic in pain reliever respectively. Iodex में भी इसका use होता है. Chlorine. Chlorine is a greenish yellowish yellow gas with a suffocating pungent smell. Chlorine क्या है? एक greenish yellow gas होती है जो कि suffocating pungent smell होती है उसकी. It is fairly soluble in water. Fairly soluble हो जाती है वाटर में. Its water soluble is called chlorine water which is pale yellow. जो वाटर में क्लोरीन वाटर मतलब सॉल्यूब हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, उसको क्लोरीन वाटर बोलते हैं, और जो पेल येलो कलर में हो जाता है. इट इज़ यूज एज ए डिसइंफेक्टिंग एजेंट फॉर स्टेबलाइजिंग बोथ ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल एक्सेट्रा.
बेसिकली ये डिसइंफेक्टिंग, इन्फेक्शन से बचने के लिए इसको मतलब ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर रफ एंड हार्ड फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट. ये एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है कॉटन एंड जूट में. क्लोरीन इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड सच एज DDT बनाने के लिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एंड BHC बेंजेन हेक्साक्लोराइड, इसको मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीच, ब्लीच को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज होता है. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिनरल एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है. हमारे एयर में भी 78% नाइट्रोजन होता है. ये बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट है फॉर ऑल अमीनो एसिड विच मेक अप प्रोटीन. प्रोटीन ऑल अमीनो एसिड के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. द लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर. जो लिक्विड फॉर्म में होता है नाइट्रोजन, उसको एज अ कूलिंग एजेंट यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन में. It is also used in hospital since human body tissues and bloods are stored in liquid nitrogen in hospital. हॉस्पिटल में यूज़ होता है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ एंड ब्लड्स होते हैं, ब्लड होता है, आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन इन हॉस्पिटल. लिक्विड नाइट्रोजन के फॉर्म में स्टोर होता है हॉस्पिटल में. नाइट्रोजन इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. अमोनिया के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है विच इज यूज फॉर मेकिंग लैक्टिक एसिड एंड फर्टिलाइजर. Being not very reactive, nitrogen gas is used in the food processing industry to prevent the spoiling of food stuff. नाइट्रोजन का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है कि फूड स्पॉयल ना हो जाए और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. इट्स प्रेशर इन एयर इज 20% ऑफ वॉल्यूम. ऑक्सीजन भी कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है. इसका जो प्रेशर है, प्रेजेंस है एयर में 20% प्रेजेंट होता है एयर में. ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है बिकॉज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग. जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं. कंबशन में काम आता है. विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं है. ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल यूज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. It is also used for deep sea divers and mountaineers. They carry cylinder containing oxygen and helium gas for their respiration. जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, सी में डाइव करते हैं, या माउंटेनियर्स होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एयर में ऊपर जाते जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा, तो उनको एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना पड़ता है. द लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट. लिक्विड ऑक्सीजन एज यूज होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में भी. A mixture of oxygen and acetylene is used to produce acetylene flame which is used for molding and cutting metal. Metals को कट करने के लिए जो फ्लेम यूज़ होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर होता है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिटिलीन फ्लेम. It is also used in hospital as oxygen filled cylinder and used to give oxygen to patients suffering from respiratory problem. Hydrogen. Hydrogen is also a colorless, odorless and tasteless gas. It is a flammable gas. It burn in oxygen to form water. Water को फॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन में बर्न हो जाती है. हाइड्रोजन को डिस्कवर हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था. यूजेस क्या है? अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट एज ए यूज़ होता है. इसको रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन को. कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी. सल्फर. सल्फर एक पेल येलो सॉलिड है. ये इनसॉल्युबल है वाटर में. इट्स रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सल्फेट. सल्फेट फॉर्म करता है जब ये मेटल के साथ रिएक्ट कर देता है. यूजेस क्या है सल्फर के? सल्फर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर और सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए सल्फर का यूज़ होता है. फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड के लिए इसका यूज़ होता है. सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन. जब ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सल्फर एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन. सल्फर टू रबर में हम ऐड करते हैं दोनों को तो वल्कनाइजेशन बनता है. सल्फर इज एडेड टू रबर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल. सल्फर को हम रबर में ऐड करते हैं उसको ज़्यादा ड्यूरेबल बनाने के लिए. नोबल गैसेस. केमिकली इनर्ट एलिमेंट्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस. इसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं. 6 नोबल गैस है. फर्स्ट वन इज हीलियम. हीलियम के एक सेकेंड लाइटेस्ट एलिमेंट नोन सो फार. ये सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एनिमल, सेकेंड लाइटेस्ट एनिमल. द फर्स्ट लाइटर एनिमल क्या है? हाइड्रोजन. नेक्स्ट जो लाइटर एकदम लाइट वेट है वो है हीलियम.
पार्टी बैलून्स को फिल करने के लिए हीलियम का यूज़ होता है। आर्गन क्या है, एक इट इज़ यूज इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने के लिए आर्गन का यूज़ होता है। नियॉन इज़ यूज फॉर एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड, साइन बोर्ड्स होते हैं उसको एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स होते हैं, उसमें नियॉन का यूज़ होता है। रेडॉन, इट इज़ यूज इन रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए जो थेरेपी यूज़ होती है उसको एज अ रेडिएशन रेडॉन यूज़ होता है। क्रिप्टॉन क्या है, ये फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन लेजर बीम टू ट्रीट सर्टन आई प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए भी क्रिप्टॉन का इनर्ट गैस का यूज़ होता है। जेनन, इट इज़ यूज इन लैम्प टू प्रोड्यूस इंटेंस फ्लैशेस ऑफ लाइट इन लाइट हाउस लैम्प एंड इन फ्लैश लैम्प फॉर फोटोग्राफी, ये लाइट लैम्प्स के लिए यूज़ होता है। इंटेंस फ्लैश ऑफ लाइट्स के लिए इट इज़ यूज इन पेजर्स में भी यूज़ होता है जेनन का। बेसिकली ये फ्लैश लैम्प्स फॉर फोटोग्राफी में यूज़ होता है जेनन का। मेटलॉइड्स, एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। आर्सेनिक, जर्मेनियम, टंगस्टन, एंटीमनी बिलोंग्स टू दिस क्लास। Unlike metal, they are neither malleable nor ductile nor tenacious, but arsenic is good conductor of electricity and antimony form alloy with metals. Okay. मेटल की तरह ये मेलिएबल डक्टाइल नहीं होते, लेकिन जो इसमें आर्सेनिक होते हैं जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो एंटीमनी होता है वो एलॉय बनाता है विथ मेटल्स। ना यूजेस ऑफ सम कॉमन मेटलॉइड्स, सो कॉमन मेटलॉइड्स क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन चिप्स आर वाइडली यूज एंड फॉर्म बेसिस ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग में सिलिकॉन चिप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। When silicon is alloyed with aluminium, जब हम सिलिकॉन को एल्यूमिनियम के साथ अलॉय करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन इंजन एज अ प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन इम्प्रूव कास्टिंग ऑफ मेटल ऑन अ सरफेस। व्हेन मिक्सड विथ आयरन, जब हम सिलिकॉन को आयरन के साथ मिक्स करते हैं, सिलिकॉन इन्हेंस द आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो वो आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस करते हैं। सिलिकॉन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्टील एंड प्रोवाइडिंग टफनेस टू द स्टील, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टील के कंपोनेंट के लिए क्योंकि वो स्टील को एक टफनेस प्रोवाइड करता है। कौन, सिलिकॉन। दिस लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द सिलिकॉन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास ऑल्सो। सिलिकॉन कार्बाइड कॉमनली नोन एज कार्बोरडम इज एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस एंड इज यूज्ड इन एब्रेसिव्स। सिलिका इज सैंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, ग्लास बनाने के लिए मेन सिलिका एक मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं। सिलिका इन सैंड एंड मिनरल इन क्ले आर यूज टू मेक कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स, सिलिका अगर हम सैंड और मिनरल्स में बना रहे हैं क्ले के फॉर्म में तो वे कॉन्क्रीट एंड ब्रिक्स को बनाने के लिए भी यूज होता है। प्योर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज यूज इन हाई प्रिसिशन वॉचेस एंड क्लॉक्स। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन्स ऑफ वेयर वी यूज दिस सिलिकॉन। जर्मेनियम, जर्मेनियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड एंगल कैमरा लेंसेज के लिए यूज होता है। ऑनिंग इट टू सिमिलैरिटीज विद सिलिकॉन्स एंड टीन, जर्मेनियम इज वाइडली यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में भी जर्मेनियम का यूज होता है। द इनर कोटिंग ऑफ द फ्लोरेसेंट ट्यूब अलाउ देम टू ग्लो, जो इनर कोटिंग होती है फ्लोरेसेंट ट्यूब की उसको ये अलाउ करता है ग्लो करने के लिए। जर्मेनियम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सच कोटिंग। आर्सेनिक, small amount of arsenic is used in making alloys, कम अमाउंट ऑफ आर्सेनिक यूज होता है अलॉय बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर्टन पार्ट ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी यूज इन कार्स एंड ट्रक्स आर अलॉय फॉर लेड एंड आर्सेनिक। दिस एलिमेंट इज वाइडली यूज इन कंपाउंड्स में वाइडली यूज होता है। आर्सेनिक वॉज ऑल्सो यूज टू मेक लेड शॉर्ट इन द पास्ट, हाउएवर द अमाउंट ऑफ आर्सेनिक यूज इन सच एप्लीकेशन इज लाइकली टू डिक्रीज। ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में भी ट्रेसेस अमाउंट मतलब कम अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में यूज होता है। व्हेन एडेड टू जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इट इज़ यूज टू मेक ट्रांजिस्टर, जब हम आर्सेनिक को जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ ऐड करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए यूज होता है। अ कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक कॉल्ड गैलियम आर्सेनाइड, कंपाउंड ऑफ आर्सेनिक को हम गैलियम आर्सेनेट बोलते हैं, जिसको GaAs से डिनोट करते हैं। इज़ यूज टू मेक लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स बनाने के लिए यूज़ होता है।
LEDs बनाने के लिए यूज़ होता है। दिस LEDs आर वाइडली यूज इन हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स। जो ये LEDs से है ना, जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, आपने घर पे देखा होगा हैंड कैलकुलेटर्स होते हैं, उसमें जो थोड़ी सी लाइट ग्लो होती है वो इसी की वजह से होती है। क्लॉक्स में, वॉच एंड अ नंबर ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ये यूज़ होता है आर्सेनिक। टंगस्टन we will do in our next class. Thank you and have a nice day.